Assalamu alaikum students. Let's move on to the next concept. So in the previous video I've already told you about acetyl coenzyme A with which it can be done by the process of Krebs cycle, which is held in the mitochondria, which is the organelles of the cell. So let's start. What is written first? You can see the flow chart over here. So it is written process of energy production. I have already told you in the beginning of this chapter that in this chapter you have to study whole thing about energy production, that is how energy is produced from the different life processes. Okay, let's start. See, you can see this flow chart. First in it is written lipids, carbohydrates and proteins. Lipids, fatty acids, carbohydrates undergoes glycolysis and protein undergo amino acids, from which we get pyruvic acid, and then fatty acids and amino acids together called as acetyl coenzyme A and Krebs cycle. See, after listening this, you just go through this below paragraph. You can understand it clearly. What is written? Energy production in microorganisms through anaerobic respiration. What is anaerobic respiration? Means though that respirations which is helped in absence of oxygen. Anaerobic means in absence of oxygen, there is no oxygen taking place. Aerobic respirations mean what? There is oxygen is taking place. Now what is written here? See this. Some organisms cannot live in presence of oxygen. Yes, this is very true that some organisms cannot live in oxygen without oxygen. Many bacteria, such as for example, many bacteria, they do not live without in the presence of oxygen. When the oxygen is present, bacteria cannot live because they are called as anaerobic bacteria, means they cannot live in the presence of oxygen. Such living organisms have to perform anaerobic respiration for energy production. Now we are aerobic respiration. We do aerobic respiration by taking oxygen inside. Okay, but these bacteria have to perform anaerobic respiration. Why? Just to produce the energy. Glycolysis and fermentation are the two steps of anaerobic respiration. What is there? Glycolysis and the fermentation. Glycolysis, I have already told you about lysis. Lysis means what? Lysis means the breakdown. Okay, and by the fermentation process, actually this is a process. It is a metabolic process which produces the chemical changes in organic substrates. Okay, through the action of enzymes, and enzymes helps in anaerobic respiration very properly. Okay, glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. What happens in anaerobic respiration? See, anaerobic respiration, I'm sorry, I forgot to explain this, but I am explaining this second diagram, which is anaerobic respiration in living organisms and hashtag cells, sorry, slash cells. Okay, what is written? Glucose से होता है glycolysis, breakdown of glucose means glycolysis. Then we come to pyruvic acid. Then fermentation happens of pyruvic acid, and after fermentation we get different products like vinegar, vitamins, etc., and which are used in making various microbes. Okay, ठीक है. Now let's study what is written. Glycolysis, glucose is incompletely oxidized एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन. ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है उसमें. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, एनर्जी कम अमाउंट में एनर्जी आती है. जहाँ पर कम ऑक्सीजन वहाँ पर कम एनर्जी. लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन ऑब्टेन्ड. Okay, now pyruvic acid produced through glycolysis. I have already told, see, glucose, it undergo glycolysis. Glycolysis undergo to form a product which is called as pyruvic acid. Okay, so pyruvic acid is formed in the glycolysis and it is converted into the organic acids or alcohol with the help of some enzymes. In this process, see, pyruvic acid is converted into alcohol, and also what, and it is converted into organic acids, which with the help of enzyme is very much necessary in this process. So this process is called as fermentation. I already told you fermentation is nothing but a metabolic process that produces the chemical changes in organic substrates through the action of enzymes. Okay, some higher plants, animals and aerobic microorganisms can also perform anaerobic respiration
instead of aerobic respiration if their depletion in oxygen level in the surrounding. What is written? Some higher plants, कुछ ज़्यादा higher level of plants रहते हैं या animals और aerobic microorganisms can also perform anaerobic respiration, that is in the absence of oxygen. ठीक है, माइक्रो इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन वो नहीं करते. क्यों? क्योंकि उनका डिप्लीशन होता है ऑक्सीजन लेवल में, उनका जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसका डिप्लीशन होता है. ओके, नाउ व्हाट इज रिटन? एग्जाम्पल, सीड्स फॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जो सीड्स रहते हैं वो परफॉर्म करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस. कब करते हैं सीड्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन? जब जो सॉइल है वो सबमर्ज हो जाएगा, कम्प्लीटली मिक्सड अप हो जाएगा इनटू द वाटर, अंडर वाटर में, ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जर्मिनेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस फ्रॉम विच द सीड इज बीन डेवलप्ड. सीड इज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द स्पोर, फ्रूट्स, एनीथिंग, या फिर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है उससे, दिस कॉल्ड एज जर्मिनेशन. Similarly, our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise. See, when you perform exercises, see, you can observe that you go with the lack of oxygen. आपको ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए आप हाफते हो. तो क्यों? क्योंकि अपने जो मसल सेल्स है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, हमको इसलिए उसके वक्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी and lactic acids accumulates due to which we feel tired. See, very important point regarding our practical life as well. हमारी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसी वजह से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो पसीना आने लगता है, विच स्वेट, जस्ट स्वेटिंग अकर्स. सो just because of lactic acid formation and then hence we feel tired. So this is the explanation of anaerobic respiration, absence of oxygen. Okay, now we'll study, I told you all, process of energy production through aerobic respiration. What is written? Aerobic respiration. Okay, now see what is written. See, aerobic respiration mein what happens? Lipids is nothing but it is energy which produced through hormones. Okay, and carbohydrate undergo glycolysis. Proteins means nothing like a body structure that formation या healing में काम आता है या repair में काम आता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनता है, एंड फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स वी गेट एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए. एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ Krebs cycle, and after Krebs cycle we get carbon dioxide, hydrogen and energy. We'll have the detailed explanation over here. Okay, what is written? Energy from different food components. Very important part, students. Energy from different food components. This is the explanation of, this is whole explanation of an aerobic respiration, which is the flow chart of your process of energy production through aerobic respiration of carbohydrate, proteins and lipids. What is written? Excess of carbohydrates are stored in the liver and muscles in the form of glycogen. हमारे बॉडी के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कहाँ पर स्टोर होते हैं? हमारे लिवर के अंदर और हमारे मसल्स के अंदर. कौन से फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में. कौन से फॉर्म में? ग्लाइकोजन. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का क्या सोर्स है? आपसे सवाल किया गया, यू क्वेश्चनिंग you all. What are they made up of? Let's study the answer. Proteins are made up of macromolecules formed by bonding together many amino acids. Amino acids तो पता है, चेन बनती है, उससे अमीनो एसिड के चेन से प्रोटीन फॉर्म होता है. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब लार्ज, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे जो बॉडी में है. तो प्रोटीन्स क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स है हमारी बॉडी में, जो किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से. किससे? एमिनो एसिड्स की चेन से बनते हैं. प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन. एनिमल की जो ओरिजिन है उनके प्रोटीन्स को कहेंगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन. इट हैज़ बीन टर्म्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स.
वी गेट 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर gram of protein. Very important line, that how much do we get? We get 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. कितनी एनर्जी हमको मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर से. फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन वी गेट 4 किलो कैलोरीज. ओके, नाउ एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. एमिनो एसिड्स जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? जब प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है तब एमिनो एसिड्स हमारे बन स्टार्ट होते हैं. दोज एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड. दोज एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और ट्रांसपोर्ट होते हैं हर ऑर्गन के पास हमारी बॉडी में, एंड सेल किसके ज़रिए से? ब्लड के ज़रिए से. फ्रॉम दीज एमिनो एसिड्स ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रोड्यूस वाया प्रोटीन्स necessary for themselves and the whole body. ठीक है, now what is written? organs and cells from these amino acids. इस amino acids के ज़रिए से क्या होता है? organs और जो cells हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे बॉडी में, विच फॉर themselves and the whole body. Those examples are given in the following diagram. Now you can see these examples. फ्रॉम स्किन एमिनो एसिड से इट इज़ डिवाइड इंटू डिफरेंट काइंड्स. स्किन से इसको हमारे स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? मेलानिन एंड केराटिन. मेलानिन मतलब क्या? मेलानिन पिगमेंट है जिससे हमारा स्किन का कलर आता है. केराटिन क्या है? हेयर का कलर आता है. ब्लड के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज़. मसल्स, इन मसल्स डू वी हैव एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड में वी हैव वेरियस काइंड ऑफ हॉर्मोन्स. पैनक्रियाज में वी हैव इंसुलिन, ट्रिप्सिन hormone. Cells, various protein of cell membrane, various enzymes are present. In bones we have one protein present that is called as osine. What do we called as? Osine. Here in all one box is given, that is always remember, very important plant. I should read this and you have to recognize it by hook or by crook, students. Okay, excess of amino acids, very important part of definition part it is. Okay, excess of amino acids obtained from proteins are not stored in the body. ज़्यादा अमीनो एसिड्स हो जाएगा अगर प्रोटीन्स के ज़रिए से, हमारी बॉडी में वो स्टोर नहीं होता है. दे आर ब्रोकन डाउन एंड द अमोनिया फॉर्म्ड इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. नाउ if there is excess of amino acids which is from the protein, we cannot store in the body. It can be harmful. So at this moment of time we do not store this. Our body break it down and that ammonia is formed. Okay, and it is releases through our excretory system from our body. If necessary, excess of proteins are converted into other useful substances like glucose through the process of gluconeogenesis. What is written? अगर ज़्यादा नेसेसरी होता है तो जो एक्सेस प्रोटीन हमारे बॉडी में बन रहे हैं वो हमारे बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए तो वो फ़ायदेमंद होगा, वरना वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाहर एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को जो प्रोटीन्स अपने आप को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में करते हैं, व्हेन प्रोटीन इज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. Gluconeogenesis, do not confuse, students. Okay, don't confuse in the wording itself. Plants produce necessary amino acids from minerals de novo and thereby produce different proteins. De novo is nothing but एक common name है, हम जो structures बनाते हैं उसके. Plant produce करता है amino acids, ठीक है, एट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन. एन एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, एन एंजाइम रुबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर. हमारे नेचर के अंदर प्लांट के जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक प्रोटीन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज रुबिस्को. व्हाट डू इट कॉल्ड एज? रुबिस्को. ओके, एंड इट इज फाउंड अबेंडेंट इन आवर नेचर. नाउ व्हाट इज रिटन? फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स. लिपिड्स जो हमें एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में मिलता है. व्हाट इज रिटन? द सब्सटेंसेज फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड
between fatty acids and alcohol are called as lipids. What is written? जो substances हमको मिलते हैं बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड, कोई केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से किसके बीच में, फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं लिपिड्स. डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम्ड बाय अस इज़ नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. जो लिपिड्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है, कंज्यूम करते हैं हम उसको, एंड इट इज़ नथिंग, व्हाट इट इज़ नथिंग बट द कन्वर्जन. जो फैटी एसिड्स है वो अल्कोहल में हमारी बॉडी में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी. फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. फ्रॉम दोज फैटी एसिड्स डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस. ये फैटी एसिड्स के ज़रिए बहुत सारे डिफरेंट सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देम सेल्स फ्रॉम दोज फैटी एसिड्स. ये फैटी एसिड्स के ज़रिए हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सब्सटेंसेस जो बहुत नेसेसरी रहते हैं. एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स. जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज़ कॉल्ड एज, एग्जाम्पल बता रहा है आपको कि एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड. व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड विच आर एसेंशियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या प्रोड्यूस करने के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स. नाउ बिसाइड फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स. हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन, लाइक ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है, ये फीमेल हार्मोन है. एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन मेल हार्मोन. ओके, ये सारे हार्मोन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको आपकी थर्ड पार्ट में भी आपको आपके पढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. एक्सेट्रा आर द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ द नर्व सेल्स. हमारे बॉडी के छोटे छोटे नर्व सेल्स हैं, नस का जो पार्ट होता है नर्व सेल्स, ये उसकी कवरिंग होती है. क्या होती है, कवरिंग होती है. प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड ऑल. Very important part. Now we get 9 kilocalories of energy per gram of lipid. सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किसके ज़रिए से आती है, लिपिड्स के ज़रिए से. किसके, लिपिड्स. दोनों के ज़रिए से आया था 4 किलो कैलोरीज, बट फ्रॉम लिपिड्स वी आर गेटिंग 9 किलो कैलोरीज. ओके. एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. एक्सेस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स मतलब क्या ना बेटा, देखो जब आप लोग वेन एवर यू ईट मोर एंड मोर एंड मोर, तो आपका जो देखो फैट नज़र आता है बॉडी के आसपास. ठीक है, फैट जो बॉडी के वो अपने बॉडी में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के ज़रिए. तो जो ग्लाइकोजन के ज़रिए जो स्टोर हो जाता है वो चर्बी जो हमको ना नज़र आती है फिर. ठीक है, तो वही बताइए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज स्टोर्ड. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में, उसमें हमारा फैट्स जो एक्सेस फैट है वो जाके स्टोर हो जाता है. समझ में आया. तो हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी, देखो हम खाते भी यही फैटी एसिड्स वाली फैट्स की चीज़ें हम खाते हैं, इसलिए हमको उससे ज़्यादा एनर्जी हमको मिलती है. बट एट द सेम टाइम इट हैज़ बीन स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. Okay, we get 9 kilocalories from the per gram of the lipids. Understood? Let's move on to the next, that is vitamins are a group of heterogeneous compound of which each is essential for proper operation of various processes in the body. We already know that vitamins very essential for our body, very essential for various processes in their body to carried out. There are main 6 type of vitamins. See, you can see everybody know 1 2 A B C आपको पता है, बट यहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन्स है जो आपको पता नहीं होंगे. दैट इज़ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. दीज आर द 6 टाइप ऑफ विटामिन्स which is properly operated in our body for various processes. Okay, out of these, इससे हटके A, D, E and K are fat soluble whereas B and C are water soluble. जो विटामिन है, विटामिन ए, डी और ई, ये हमारी बॉडी के फैट को सल्यूबल करते हैं. फैट सल्यूबल विटामिन है, फैट्स हमारे सल्यूबलाइज हो जाते हैं. और जो बाकी का विटामिन बी एंड विटामिन सी है वो वाटर सल्यूबल रहते हैं. Understood? We have seen that FADH2, that is flavin, adenine dinucleotide and NADH2 nicotinamine adenine dinucleotide are produced in the process like glycolysis and Krebs cycle. ये दो मॉलिक्यूल्स आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि ये दो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल.
विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोफ्लेविन विटामिन जो विटामिन B2 में रहता है, एंड निकोटिनामाइड विटामिन B3 है ये, रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन। FADH2 और NADH2 को प्रोड्यूस करने के लिए दो विटामिन की बहुत ज़्यादा ख़ास ज़रूरत रहती है, विच इज़ कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन जो विटामिन विच इज़ B2 एंड nicotinamide which is vitamin B3. It is very respectively responsible for the production of these two molecules. Understood? Now there is about 65 to 70% water in our body. Everybody knows this. हमारे body में 65 to 70% water है. Each cells contains 70% water weight by weight. हर सेल कितना वाटर कंटेन करता है? 70% वाटर कंटेन करता है। ब्लड प्लाज्मा, हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर सीरम प्लाज्मा है ना, बहुत सारा हीमोग्लोबिन, सो द प्लाज्मा इन आर ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 90% ऑफ वाटर। हमारे ब्लड के प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स 90% ऑफ वाटर। फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देर इज़ अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। एवरीबडी नोज दिस कि हमारी बॉडी में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे एक छोटा सा कट भी आ जाता है, इफ़ यू आर हैविंग अ स्मॉल वुंड, तो लाइक एवरीथिंग इज़ बिन डिस्टर्ब, कुछ तो अजीब सा हो जाता है। ओके तो वही बता रहा है कि कुछ भी कम ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, एनीथिंग विच इज़ बिन लेस इन आर बॉडी और इवन काइंड ऑफ एक्सेस amount in our body, so every whole system, whole body is been disturbed by little loss of water even also. Hence water is an essential nutrient, very important। water कैसा है? essential nutrient है। along with all above mentioned nutrients, बहुत सारे nutrients जो ऊपर बताए गए ABCD everything, फाइबर्स आर ऑल्सो असेंशियल न्यूट्रिएंट। फाइबर्स जो हमारे बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वो भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन फैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर्स, हाउएवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेशन सब्सटेंसेस। फाइबर्स हमारे किस काम में मदद करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी दूसरे सब्सटेंसेस, अनदर सब्सटेंसेस आर बीन present in our body, fibers help to digest them, and also when the digested substance is there, it starts the digestion over there, मतलब उसका digestion start कर देते हैं। We obtain the fibers from leafy vegetables, fruits, cereals etc. Listen very carefully students, हमको fibers कहाँ से मिलता है? लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से, सीरियल्स एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिल्क से, मीट से, बाकी बहुत सारी चीज़ों से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। सो विल एंड आवर वीडियो ओवर हियर। वन लास्ट पार्ट इज रिमेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज सेल डिविजन। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, सो memorize it, recognize it very carefully. Okay, thank you students.